Good morning, everyone. Welcome to Social Science class. In our previous video, we have discussed about some of the social reformers, and in today's video also we will discuss the same social reformers but some new faces. So first one is Periyar E.V. Ramaswamy. He was from Tamil Nadu and he was a great rationalist and revolutionist. Rationalist means he did each and everything after thinking, not on others' view और सुनी सुनाई बातों पर, ठीक है, और कुछ भी पढ़कर इस तरह से वो वर्क नहीं करते थे. वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली वर्क करते थे. एंड ही वॉज ऑल्सो रेवोल्यूशनिस्ट. रेवोल्यूशन में भी वो सबसे आगे थे. रेवोल्यूशन में चेंजेस लाने में भी उन्होंने बहुत वर्क किया. He left Congress in 1925 because he felt that the party was only serving the interest of Brahmins. He thought that Congress party is the party of Brahmins only. He called it a fort of Brahmins. He questioned the subjugation of Dravidian race by the Brahmins, who enjoyed the donation and gifts of Dravidians but discriminated against them in social and religious matters. He was against discrimination. In Tamil Nadu, Brahmins discriminate with Dravidians. जो द्रविड़ियन कम्युनिटी है वहाँ की, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था. ब्राह्मण्स डोमिनेट कर रहे थे द्रविड़ियंस को. सो ही वॉज अगेंस्ट दैट कि वाई डिड ब्राह्मण्स डोमिनेट द्रविड़ कम्युनिटी. ओके, as they enjoyed the donation and gifts from Dravidians. So why they discriminated them, why they dominated them? Okay, in all religious and social matters, why there was a discrimination against Dravidians? तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर ब्राह्मण्स द्रविड़ कम्युनिटी से, द्रविड़ लोगों से गिफ्ट्स ले सकते हैं और डोनेशंस ले सकते हैं, तो उनके साथ बैठ क्यों नहीं सकते, उन्हें प्रॉपर एक स्टेटस क्यों नहीं दे सकते हैं. ओके, कि उन द्रविड़ कम्युनिटी के साथ सोशल और रिलीजियस मैटर में डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है. Periyar was a strong supporter of Dravidian culture and launched a self-respect movement. Who launched a self-respect movement? Periyar E.V. Ramaswamy. And when he did that, 1925, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उसी टाइम पर उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की. इन सेम ईयर 1925 में ही लेफ्ट कांग्रेस एंड in that year only he started a self-respect movement. He propagated the principle of nationalism, self-respect, women's right, and eradication of caste system. He spread the feeling of nationalism, the principle of nationalism, and self-respect. उन्होंने self-respect कि हमें आत्मसम्मान होना चाहिए हमारे अंदर और नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए. विमेंस को उनके राइट्स मिलने चाहिए प्रॉपरली और कास्ट सिस्टम यहाँ से इरेडिकेट, दूर भगाना चाहिए, हटा देना चाहिए. इन चीज़ों को उन्होंने प्रोपोगेट किया. ओके, सो दिस इज अबाउट पेरियर E.V. Ramaswamy. He was born in 1879 and died in 1973. Okay, he left
Congress in 1925 because he felt that it was a fort of Brahmins. It was the group of Brahmins only. Okay, and he was against the discrimination of Dravidian communities. Okay, he was a great supporter of Dravidian culture and he propagated principle of nationalism, self-respect, women's right and eradication of caste system. He launched a self-respect movement in 1925. Okay, this is about Periyar E.V. Ramaswamy. Now, Swami Dayanand Saraswati. We all know about Swami Dayanand Saraswati. He was a great sage, philosopher, scholar and a social रिफॉर्मर. ही वॉज अ ग्रेट सेज. एक बहुत बड़े संत थे, एक फिलोसोफर थे, एक स्कॉलर थे और सोशल रिफॉर्मर्स थे. ही वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली एंड ही एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज सोसाइटी ऑफ नोबल्स एट बॉम्बे एंड लेटर एट लाहौर. ठीक है, उन्होंने आर्य समाज सोसाइटी बनाई बॉम्बे में और उसके बाद लाहौर में एस्टैब्लिश किया इसे. ही बिलीव्ड इन वन गॉड एंड प्रोपगेटेड द मैसेज बैक टू वेदा. स्वामी दयानंद सरस्वती इंग्लिश और वेद दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चले एंड ही गेव द स्लोगन बैक टू वेदा. उन्होंने ये मैसेज दिया कि हमें अपने वेद नहीं छोड़ने हैं, हमें वेदों को पढ़ना है. एक ही गॉड है, हर तरफ एक ही नॉलेज है, बट वी हैव टू रीड आवर वेद. हमें अपने वेद को फॉलो करना है, उन्हें रीड करना है. एंड वेदास आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट नॉलेज. जो वेद हैं वो नॉलेज का बहुत बड़ा सोर्स है. ही स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट टू रिकन्वर्ट हिंदूज हु हैड बीन कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स. उन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की. जैसे पेरियर E.V. रामास्वामी ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. तो सेम स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की हिंदूज को रिकन्वर्ट करने के लिए, दोबारा से हिंदू बनाने के लिए. उन हिंदूज को जिन्होंने दूसरा रिलीजन अडॉप्ट कर लिया था. He opposed idol worship, child marriage and caste system. मूर्ति पूजा का विरोध किया, चाइल्ड मैरिज और कास्ट सिस्टम का विरोध किया. He was a great supporter of widow remarriage and women education. हमेशा से उन्होंने विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया कि women should be educated and जो विडोज़ हैं उन्हें भी फिर से मैरिज करने का राइट है. Swami Dayanand wanted to build a free, strong and united India. These social and religious reformers prepared a background for nationalist movement of India. Only because of these reformers, जिन्होंने पहले से ही एक बेस बनाना शुरू कर दिया था नेशनलिज्म का और इक्वलिटी का, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने का. तो इन्हीं रिफॉर्मर्स के कारण जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हुई. ओके, सो दयानंद सरस्वती हमें पता है कि वो संत थे. सेज, ही वॉज अ सेज एंड फिलोसोफर, स्कॉलर, रिफॉर्मर. ओके, एंड ही स्टार्टेड आर्य समाज एट बॉम्बे एंड आफ्टर दैट इन लाहौर. He believed in one God and propagated the message of back to Veda. He started Shuddhi movement to reconvert Hindus who had been converted to other religions. Okay, he opposed child marriage, idol worship and caste system. He was a supporter of women education and widow remarriage. Okay, so these works had been done by Swami Dayanand Saraswati.
Now the next is Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was known as बाबा साहेब. इन्हें आज भी बाबा साहेब के नेम से याद किया जाता है. एंड he led millions of oppressed people to a life of self respect and dignity. इनके कारण ही बहुत से लोग जो कि डिसरिस्पेक्ट की लाइफ स्पेंड कर रहे थे और जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो ऑप्रेस्ड पीपल स्टार्टेड लिविंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. He was born in a poor and untouchable family. He had to sit in the corner of the classroom on a mat away from the desk of the other pupils. He was from a untouchable family, so that's why उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था स्कूल में. फर्स्टली तो अनटचेबल्स को एजुकेशन की राइट्स ही नहीं थे, बट वो पढ़ने जाते थे तो उन्हें ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट ऑन अ बेंच. उन्हें डेस्क पर या बेंच पर बैठना अलाउड नहीं था. ही हैड टू सिट ऑन अ मैट इन अ कॉर्नर. He went to Columbia University and it was here that he experienced freedom and equality. He realized that education was the only way to achieve justice. He said, justice will not be granted by others. The sufferers must secure justice for themselves. उनका ये मानना था कि एजुकेशन होगी तो ही हम अवेयर हो सकते हैं अपने राइट्स के लिए और हमें फ्रीडम और इक्वलिटी से हम रह सकते हैं. Okay, so only the education is the way to achieve justice, to achieve freedom and equality. He said, justice will not be granted by others. Just कोई दूसरा हमें जस्टिस नहीं देगा. हमें खुद के लिए न्याय या जस्टिस खुद ही लेना होगा. कोई भी आकर आपको नहीं कहेगा कि आपके साथ रॉन्ग हुआ है तो इसके लिए मैं आपको जस्टिस देता हूँ कि आप ये सही काम कीजिए. आपको अपने साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो सफरिंग हुई है, आपको जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसके लिए आपको वॉइस रेज करनी पड़ेगी और तभी खुद से ही आपको अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और जस्टिस की डिमांड करनी पड़ेगी. ही फाउंडेड अ मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक. मराठी में उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया मूक नायक नेम से. ओके, और इसमें उन्होंने किसके बारे में मैक्सिमम टाइम लिखा? सो कॉल्ड अनटचेबल्स के राइट्स के लिए, जिन्हें उस टाइम पर अनटचेबल्स कहा जाता था. हरिजन, अनटचेबल्स, ठीक है, और अछूत, इन नामों से बुलाया जाता था. तो उन लोगों की राइट्स के बारे में उन्होंने इस न्यूज़पेपर में कैंपेन स्टार्ट किया. ही फाउंडेड बहिष्कृत हितकरणी सभा. अब दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज स्टार्ट किया था और यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकरणी सभा, कि जिन लोगों को बहिष्कार किया गया उनके लिए हित करने के लिए, उनका वेलफेयर करने के लिए सभा बनाई गई है. He set up hostels, schools, free libraries to promote education and socio-economic upliftment of Dalits. Dalit means so-called lower caste. जो लोअर कास्ट की हम बात करते हैं, उन लोगों के वेलफेयर के लिए, उन लोगों को अपलिफ्ट लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फ्री हॉस्टल्स बनाए, स्कूल्स बनवाए, एजुकेशन सेंटर्स, फ्री लाइब्रेरीज को प्रमोट किया. ओके, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हेल्प की, फॉर्म किया. ठीक है, सो ही वॉज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड ही बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर फॉर लॉ ऑफ फ्री इंडिया. वो बच्चा, वो लड़का जिससे डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, जिसे ह्यूमिलेट किया गया था बहुत ज़्यादा, तो उसने ही फॉर्म्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
and he became the first minister for law of free India. इंडिया के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. हमने आज 3 सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा. पेरियर ईवी रामास्वामी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.